پاکستان اور چین کی قیادت کا خصوصی اقتصادی زونز پر کام تیز کرنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا چینی ہم منصب لی کھچیانگ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیں گے، دونوں رہنماؤں کا عزم۔ پاکستان میں مقیم چینی شہریوں کی حفاظت اہم ترجیح، حملوں میں ملوث افراد کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے، وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ عوام کو کسی صورت مشکل میں نہیں ڈالا جا سکتا، وفاقی حکومت ہر صورت کم قیمت پر آٹا فراہم کرے گی۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر 10 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 490 روپے برقرار رکھی جائے۔ صوبے 1 جون تک گندم خریداری کے اہداف مکمل کریں، وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ہدایت۔ چولستان میں پانی کی فوری فراہمی یقینی بنائی جائے، غذائی اور پانی کی قلت سے بچنے کے لیے حکمت عملی مرتب کی جائے، وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کم کرنے، آبی ذخائر اور جنگلات کے تحفظ کے لیے ٹاسک فورس قائم۔ ہیٹ ویو کے حوالے سے صوبوں کو الرٹ جاری کر دیے گئے ہیں، وفاقی وزیر شیری رحمان۔ عمران خان کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کی جائے، صوبائی حکومتیں بھی جلسوں کے دوران مؤثر سیکیورٹی فراہم کریں، وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ بنی گالا ہاؤس کی سیکیورٹی کے لیے پولیس اور ایف سی کے اہلکار تعینات۔ عمران نیازی امریکی سازش کی طرح مسلسل اپنی جان کو خطرے کا بیانیہ بنا رہے ہیں، خطرات سے متعلق ٹھوس ثبوت ہیں تو سامنے لائے جائیں۔ حکومت مکمل تحقیقات کے لیے تیار ہے، معاملے پر جوڈیشل کمیشن بھی قائم کیا جا سکتا ہے، وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ۔ جھوٹ بولنے، دھمکی دینے اور گالی دینے سے حقیقت نہیں چھپتی۔ معاشی تباہی، بے روزگاری اور بھوک کا اصل مجرم عمران نیازی ہے۔ عوام سب جانتے ہیں اور اپنے مجرم کو پہچانتے ہیں، وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب۔ پنجاب حکومت کا عوام کو ریلیف فراہم کرنے کا منصوبہ، آٹا، چینی اور گھی سستا کرنے کا فیصلہ۔ قیمتوں میں اتنی کمی کی جائے جس سے عام آدمی کو حقیقی معنوں میں ریلیف مل سکے، مانیٹرنگ کا فول پروف میکانزم تشکیل دیا جائے، وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری 18 مئی سے امریکہ کا 2 روزہ دورہ کریں گے، غذائی تحفظ سے متعلق کانفرنس اور سلامتی کونسل میں ہونے والے مباحثے میں شرکت کریں گے۔ امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال ہوگا۔ غدار کہنے کی رسم ختم ہونی چاہیے، بردباری اور رواداری کی روایت کو مضبوط کرنا ہوگا۔ 450 کنال زمین اور 50 کروڑ روپے القادر یونیورسٹی کے لیے دیے گئے، وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ ملک میں بجلی کی پیداوار 21,500 میگا واٹ ہے۔ پی ٹی آئی حکومت نے معاملات بہتر کرنے کی کوشش نہیں کی، پاور ڈویژن روزانہ کی بنیاد پر صورتحال کی نگرانی کر رہا ہے، وزیر توانائی خرم دستگیر۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی کا اسلام آباد میں متحدہ عرب امارات کے سفارت خانے کا دورہ، شیخ خلیفہ بن زائد ال نہیان کے انتقال پر اظہار تعزیت۔ مرحوم پاکستان کے سچے اور مخلص دوست تھے، دکھ کی گھڑی میں شاہی خاندان کے ساتھ ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں نہتے کشمیریوں کا قتل عام جاری، گھر گھر چھاپے معمول بن گئے۔ حریت قیادت کا شپیاں میں شہید ہونے والوں کو خراج عقیدت، عالمی برادری سے کشمیریوں کی نسل کشی روکنے کا مطالبہ۔ بھارت میں انتہا پسندی زوروں پر، کرناٹک میں بجرنگ دل نے کارکنوں کو اسلحے کے استعمال کی تربیت دینا شروع کر دی، اسلحہ بھی تقسیم کیا گیا۔ بادل آئے، گرجے، کہیں ہلکی پھوار ہوئی مگر سورج کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا۔ ملک میں گرمی کی شدت برقرار، جیکب آباد اور نورپور تھل میں درجہ حرارت 48 ڈگری سینٹی گریڈ، سبی اور جہلم میں پارہ 47 ڈگری تک پہنچ گیا۔
नेपाल में 8000 मीटर से बुलंद 2 चोटियों पर सब्ज हिलाली परचम लहरा दिया गया। कोहपेमा अब्दुल जोशी ने दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट सर करने का एजाज हासिल कर लिया। 20 साल शहरोज काशिफ ने 8516 मीटर बुलंद दुनिया की चौथी बुलंद तरीन चोटी लहुद से सर कर ली। स्विट्जरलैंड में 5A साइड हॉकी टूर्नामेंट के लिए कौमी टीम का ऐलान। ताजिम उल हसन कप्तान होंगे। टूर्नामेंट 4 जून से शुरू होगा। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल के डॉक्टर्स का अहम कारनामा। कामयाब ऑपरेशन के बाद उकाड़ा के रिहायशी 5 साल नन्हे बच्चे के दोनों बाजुओं को जोड़ दिया। और कदीम कारें रखने वालों के लिए खुशखबरी। कराची में पहली मर्तबा कदीम कारों के ऑनलाइन म्यूजियम का आगाज। बेशतर कारों की उम्र 1 सदी से जायद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद और मैं हूं सलमा कौसर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान और चीन की क़यादत ने इस आज़म का इरादा किया है कि दोनों ममालिक की आजमूदा स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को नुकसान पहुंचाने की किसी सूरत इजाजत नहीं दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और उनके चीनी हम मनसब ली केचियांग के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें दो तरफा कसीरुल-जहती ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में मुकीम चीनी शहरियों की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है और इनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। जामिया कराची में दहशतगर्दी के वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हुए मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि इसमें मुलव्विस अनासिर को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की समाजी और माशी तरक्की में इक़्तिसादी राहदारी मनसूबों का अहम किरदार है। CPEC मनसूबों की तकमील के लिए काम की रफ्तार को तेज़ किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने इस ख्वाहिश का इज़हार किया कि खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स को ऑपरेशनल करने में चीन के तजर्बे से इस्तिफ़ादा किया जाए। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स पर काम तेज़ करने के लिए ताउन बढ़ाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने ML1 मनसूबे की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि इस मनसूबे की तकमील से खित्ते में माशी सरगर्मियों को फ़रोग़ हासिल होगा। अवामी राब्तों का जिक्र करते हुए मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तानी तलबा चीन वापस जाकर तालीमी सिलसिले को बढ़ाने के ख्वाहिशमंद हैं। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली केचियांग ने पाकिस्तान के साथ माशी ताउन बढ़ाने, तिजारत और सरमायाकारी में इजाफे के लिए भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। दोनों वज़ीर-ए-आज़म ने पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के तहत इलाकाई और आलमी सतह पर अमन और इस्तेहकाम के मुश्तरका मकासद के साथ मफाद आमा से मुतालिक उमूर पर भी इत्तिफाक किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और कौमी तरक्की के लिए चीन की हिमायत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि कौम की एक एक पाई बचाना हमारा फ़र्ज़ है। अवाम को किसी सूरत मुश्किल में नहीं डाला जा सकता। सूबे ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ इक़दाम करें। इस्लामाबाद में इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि मयारी गंदम की दरामद को यकीनी बनाने के साथ सूबों में मुनसिफाना तकसीम के लिए फौरी कमेटी कायम की जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वफाक सियासत से बालातर होकर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की हर मुमकिन मदद करेगा। गंदम खरीदारी के अहदाफ पूरे न करने पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हिदायत की कि सूबे 1 जून तक इन अहदाफ को पूरा करें। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत हर सूरत कम कीमत पर आटा फराहम करेगी। तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे के 10 किलो थैले की कीमत 490 रुपए पर रखी जाए। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि ओपन मार्केट में भी बाकी सूबे इसी कीमत को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करें। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने मुलाकात की और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। अवाम को महंगाई की दलदल से निकालने और माशी इस्तेहकाम पर भी दोनों रहनुमाओं ने गुफ्तगू की। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि अवाम को रिलीफ देने के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल को पूरे कार लाएंगे। उन्होंने कहा कि जमहूरियत के इस्तेहकाम और अवामी फलाह व बहबूद को यकीनी बनाने के लिए इत्तेहादी जमातों का मिलकर काम करना है। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमती सतह पर तमाम फैसले कौमी मुफाद में किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए जमहूरियत और आइन की पासदारी जरूरी है।
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कन्वीनर और रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस मुलाकात में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू और तफसीली मुशावरत की गई। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म को अवामी फलाही मंसूबों को हुकूमत की अव्वलीन तर्जीहात में शामिल करने और कराची की अवाम के लिए तरक्याती मंसूबों पर फौरी अमल दरामद की हिदायत पर खराज तहसीन पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने हुकूमती इस्लाहात के नफाज में इत्तेहादी जमातों के ताउन का खैर मकदम करते हुए मुस्तक़बिल में कौमी मफाद के फैसलों में इत्तेहादियों के ताउन को कलीदी किरदार को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को फूल प्रूफ सिक्योरिटी और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर फराहम करने की हिदायत की है। वज़ारत दाखिला की जानिब से ब्रीफिंग के मौके पर मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को हिदायत की कि इमरान खान को हर हवाले से बेहतरीन सिक्योरिटी फराहम की जाए। उन्होंने तमाम सूबाई हुकूमतों को भी हिदायत जारी की कि चेयरमैन पीटीआई को जलसों के दौरान मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाए। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को अहकाम जारी कर दिए गए हैं। इमरान खान की बनीगाला रिहाइश गाह की सिक्योरिटी के लिए इस्लामाबाद पुलिस और FC के 94 एहलकार तैनात हैं। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के 36 और गिलगित बल्तिस्तान पुलिस के 6 एहलकार भी इमरान खान की सिक्योरिटी पर तैनात हैं। बनीगाला रिहाइश गाह पर निजी सिक्योरिटी कंपनी के 35 एहलकार भी मामूर हैं। वज़ारत दाखिला की ज़ेर निगरानी थ्रेट असेसमेंट कमेटी इमरान खान की सिक्योरिटी से मुतालिक मामलात का मुसलसल जायजा ले रही है। तर्जुमान वज़ारत दाखिला का कहना है कि अगर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पास सिक्योरिटी खदशे से मुतालिक कोई खास इत्तला मौजूद है तो वो ज़रूर शेयर करें ताकि सिक्योरिटी के इंतजामात मज़ीद बढ़ाए जा सकें। वफाकी हुकूमत इमरान खान को दरपेश मुमकिन सिक्योरिटी खदशात के मामले की मुकम्मल तहकीकात के लिए तैयार है। इमरान खान चाहें तो इस मामले पर जुडिशल कमीशन भी कायम किया जा सकता है जो उनकी तरफ से फ्राहम करदा शवाहिद और मालूमात का जायजा लेकर आज़ादाना फैसला दे सकता है। एक बयान में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान ने कहा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान न्याज़ी अमरीकी साजिश की तरह अब मुसलसल अपनी जान को खतरे का बयानिया बना रहे हैं। मुमकिना खतरे से मुतालिक अगर कोई ठोस सबूत उनके पास है तो इसे वज़ारत दाखिला से फौरी शेयर करें। उन्होंने कहा कि अगर इमरान न्याज़ी अपनी जान को खतरे से मुतालिक मालूमात फराहम नहीं करते तो अमरीकी साजिश की तरह इस बयानिए को भी सियासी चाल ही तसव्वुर किया जाएगा। वज़ीर दाखिला ने कहा कि एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म का अपनी जान के खतरे को पॉलिटिकल स्टंट के तौर पर पेश करना इंतहाई अफसोसनाक और खतरे का बायस हो सकता है। इमरान न्याज़ी अपनी सिक्योरिटी को सियासी प्रोपेगेंडे के तौर पर पेश करने के बजाय शवाहिद शेयर करें। वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब कहती हैं इमरान खान को मालूम होना चाहिए कि झूठ बोलने, धमकी देने और गाली देने से हकीकत नहीं छुपती। अवाम सब जानते हैं और अपने मुजरिम को पहचानते हैं। अपने ट्वीट में वज़ीर इत्तलाआत ने कहा कि मुआशी तबाही, बेरोजगारी और भूख का असल मुजरिम इमरान खान है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुल्क में ज़र मुबादला की मौजूदा सूरत हाल और बढ़ते हुए करंसी एक्सचेंज रेट पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। इस्लामाबाद में इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने तमाम मुतल्लिका इदारों को सूरत हाल की बेहतरी के लिए जामे हिकमत अमली वज़ा करने की हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ज़र मुबादला के ज़खायर और करंसी एक्सचेंज रेट के हवाले से हंगामी बुनियादों पर मौसर और काबिल अमल प्लान पेश किया जाए। नाज़रीन, गुज़श्ता हुकूमत ने आवाम को महंगाई की दलदल में ऐसा धकेला कि जीना मुहाल हो गया। नवाज शरीफ दौर में महंगाई काबू में रही मगर इमरान खान ने 10% इजाफा करके महंगाई को 13% तक पहुंचा दिया। हक़ाइक़ जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब ने इमरान हुकूमत की जानिब से आम आदमी को महंगाई की चक्की में पीसने की अफसोसनाक दास्तान बयान कर दी। आदादो शुमार बताते हैं कि मुल्क की मईशत में किस तरह बारूदी सुरंग बिछाई गई जो आए रोज कभी पेट्रोलियम और कभी स्टॉक मार्केट और डॉलर को लपेट में ले रही है। नवाज शरीफ के दौर में महंगाई की शरह सिर्फ 3.9% थी मगर पीटीआई के दौर में महंगाई मुसलसल बेकाबू रही और ये 13% की हौलनाक शरह पर पहुंच गई। अशियाए खुरोनोश में महंगाई की शरह नवाज दौर में 2.3% थी जो इमरान खान के दौर में 15% तक जा पहुंची। पीटीआई की हुकूमत ने आम आदमी के बच्चों के मुंह से निवाला छीन लिया। पिछले 3.5 बरसों में आम आदमी की आमदनी पहले से भी कम हो गई जबकि वो साबिक हुकूमत की तरफ से डाले गए माली बोझ से निढाल हो चुका है। इक्तिसादी मैदान में कोई भी सेक्टर साबिक हुक्मरानों की नाअहली से महफूज नहीं रहा। जीडीपी ग्रोथ 2018 में 6% थी और 2022 में कम होकर 4% रह गई। मालियाती खसारा 2018 में 2260 बिलियन था जो 2022 में 5600 अरब तक पहुंचने का खदशा है।
ایمانداری کا ڈھونگ رچا کر سیاسی مخالفین پر الزامات لگانے والے عمران خان نے نہ صرف معیشت کو برباد کیا بلکہ پوری دنیا میں پاکستان کی ساکھ بھی ڈبو دی۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق بدعنوان ملکوں میں 2018 کے دوران پاکستان کا نمبر 117 تھا، جو 23 درجے بڑھ کر عمران خان کے دور میں 140 پر پہنچ گیا۔ پاسپورٹ کی رینکنگ میں 2018 میں پاکستان کا نمبر 104 تھا، جو عمران حکومت نے 109 تک پہنچا دیا۔ عوام کو ریلیف کی فراہمی کے لیے پنجاب حکومت نے آٹا، چینی اور گھی سستا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ لاہور میں وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کی صدارت میں اجلاس ہوا، جس میں ریلیف پیکج کو حتمی شکل دینے کے لیے تجاویز کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے مانیٹرنگ کا فول پروف میکانزم تشکیل دینے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ خصوصی ریلیف پیکج کی نگرانی کے لیے علیحدہ سیل قائم کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ خصوصی ریلیف پیکج سے عام آدمی کی مشکلات میں کمی ہوگی۔ High Court be in focus. The district judiciary should be in focus. So it also requires changing of mindsets. There is no other option than to change ourselves, to reimagine the judicial system in the 21st century. Societies which do not have effective dispute resolution mechanisms, those societies end up in chaos. So, at the Islamabad High Court, we have already taken this initiative. We have created that forum. But we need everyone's help, everyone's assistance, everyone's cooperation. And anyone who's interested with the ideas, I would suggest to contact the focal person who is the chairman of the Public-Private Partnership Authority. We also we had a very, very useful meeting with them. And in the course of meeting, we suggested to them that probably one of the most significant project for them to consider would be a public-private partnership in mediation and alternate dispute resolution field. اسلام آباد میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عطر من اللہ تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ تبدیل کرنا ہوگا۔ ہم نے فورم بنا دیا، لیکن سب کے تعاون کی ضرورت ہوگی۔ خبرنامے میں آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں چولستان میں انسانی بستیوں اور جانوروں کے لیے پانی کی فوری فراہمی یقینی بنائی جائے۔ مستقبل میں شیشپر گلیشیئر جیسے واقعات اور غذائی اور پانی کی قلت سے بچنے کے لیے حکمت عملی مرتب کی جائے۔ اسلام آباد میں اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کم کرنے، آبی ذخائر اور جنگلات کے تحفظ کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے ماہرین پر مشتمل ٹاسک فورس فوری قائم کی جائے گی۔ شرکاء کو گرمی کی شدید لہر اور موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے پانی کے بچاؤ کے لیے ہنگامی بنیادوں پر جامع حکمت عملی مرتب کرنے اور آگاہی مہم شروع کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ بارش کا پانی ذخیرہ کرنے کے لیے بھی آئندہ مونسون سے پہلے فوری اقدامات کیے جائیں۔ وزیر اعظم نے چیئرمین NDMA کو فوری ہنزا کا دورہ کرنے اور شیشپر گلیشیئر واقعے میں منہدم پل کو فوری تعمیر کرنے کے بھی احکامات جاری کیے۔ انہوں نے وزارت صحت کو فوری طور پر کورونا کے نئے ویرینٹ سے متعلق تحقیق اور ممکنہ اثرات پر تفصیلی رپورٹ پیش کرنے کی بھی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وزارت تعلیم سرکاری اور نجی اسکولوں میں حالیہ گرمی کی شدید لہر سے بچاؤ کے لیے SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنائے۔ وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی شہری رحمان نے کہا ہے کہ 2025 تک پاکستان میں پانی کی قلت کا مسئلہ شدت اختیار کر سکتا ہے۔ ہیٹ ویو کے حوالے سے صوبوں کو الرٹ جاری کر دیے گئے ہیں۔ مزید تفصیل بتا رہے ہیں انیس ساوان۔
اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے موسمیاتی تبدیلی کی وزیر شہری رحمان نے کہا کہ ملک میں جاری گرمی کی لہر کے حوالے سے صوبوں کو الرٹ جاری کر دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ماحولیاتی تبدیلی قومی سلامتی کا مسئلہ ہے۔ دنیا میں پانی کی کمی کا شکار ملکوں میں پاکستان کا نمبر 3 ہے۔ پاکستان ایک سب سے کم 1% گلوبل ایمیٹر ہے، دنیا میں نمبر 5 آ چکا ہے ایز دا موسٹ ولنریبل کنٹری آن کلائمیٹ چینج۔ پانی کے حوالے سے 3rd موسٹ واٹر سٹریس کنٹری ان دا ورلڈ۔ 2025 میں پاکستان واٹر سکیس بھی ہو سکتا ہے۔ سینیٹر شہری رحمان نے کہا کہ بدلتے موسمی حالات کی وجہ سے ملک میں غذائی قلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سابق حکومت کے خیبر پختونخوا میں بلین ٹری سونامی پروگرام کی شفافیت پر تحفظات ہیں۔ بلین ٹری سونامی چل رہی تھی جو KP کی ہے، اور اس میں کچھ ہمیں تشویش بھی ہے اور سوالات بھی اس پر اٹھے ہیں۔ یونائٹڈ نیشنز نے اب پاکستان کو 23 موسٹ ڈراؤٹ ہٹن کنٹریز میں شمار کیا ہے۔ کاربن کے اخراج میں کمی اور روایتی ایندھن کی بجائے توانائی کے متبادل اور ماحول دوست ذرائع استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ انیس اوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ صبح سندھ کے مختلف علاقے ان دنوں شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں۔ اس بارے میں تفصیل جانتے ہیں شیراز علی سے۔ سندھ کے مختلف شہر جو ہیں آج شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں، اور سب سے زیادہ درجہ حرارت جو اس وقت ہے وہ جیکوباد میں محسوس کیا جا رہا ہے، اور جو ٹیمپریچر ہے وہ 45 سینٹی گریڈ تک پہنچ چکا ہے، جبکہ لاڑکانہ، نواب شاہ، سکھر، روڑی اور تھر پارکر میں بھی شدید گرمی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق یہ پورا ہفتہ جو ہے شدید گرمی رہے گی، اور یہ لہر جو ہے جاری رہے گی ایک ہفتے تک، اور خاص کر کے جب جن شہروں میں تھوڑی سی ہوا چل رہی ہے تو وہاں پہ گرمی کی شدت میں کچھ جو ہے کمی آ رہی ہے، لیکن ادروائز خاص کر کے جو نواب شاہ، جیکب آباد اور لاڑکانہ، روڑی ہیں، ان علاقوں میں شدید گرمی محسوس کی جا رہی ہے۔ حیدرآباد میں بھی ٹیمپریچر جو ہے وہ 40 کے قریب ہے، جبکہ نواب شاہ میں 43 سے بھی ابو کر چکا ہے، اور جیکب آباد میں 45 سینٹی گریڈ ہے۔ تو محکمہ موسمیات کے مطابق یہ شدید جو گرمی ہے اس سے بچنے کے لیے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں، اور جو ہے ضرورت کے بغیر جو ہے وہ باہر نہ نکلا جائے، کسی ضروری کام سے وہ باہر نکلا جائے، لیکن ادروائز جو ہے وہ لوگ دن کے اوقات جو ہیں 1-2 بجے سے لے کے شام 4-5 بجے تک جو ہے خصوصاً ہیں وہ گھروں پر رہیں، ٹھنڈے مشروبات زیادہ استعمال کریں۔ دوسری جانب لاہور میں آج درجہ حرارت میں قدرے کمی رہی اور سورج بھی بادلوں کے حصار میں رہا۔ تفصیل بتائیں گی اس کا مقصود۔ صوبائی دارالحکومت میں ہوئی آج گرمی کی شدت میں کمی، سورج بھی تمام دن بادلوں کی اوٹ سے آنکھ میں چولی کھیلتا رہا۔ سورج کی تپش میں کمی سے درجہ حرارت میں بھی کمی ہوئی، اور آج لاہور کا درجہ حرارت 43 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ صوبائی دارالحکومت میں وقفے سے گرد آلود ہوائیں چلتی رہیں، تاہم بارش کا بھی امکان نہیں۔ آج اور کل 2 دن جو ہے اس میں تھوڑا سا کمی ہونے کا چانس ہے، جیسے میکسیمم ٹیمپریچر لاہور کا جو تھا وہ 14 تاریخ کو 46 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا، لیکن آج اور کل یہ ٹیمپریچر 43-44 تک جانے کا امکان ہے، لیکن 18 تاریخ سے ایک گرمی کی لہر دوبارہ ہوگی، اس میں ٹیمپریچر بوسٹ اپ ہوں گے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور میں ہوائیں اور جھکڑ چلنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ بہت زیادہ گرمی ہے اور ہر طرح کی ایکٹیویٹیز ہم سب کی بہت زیادہ افیکٹ ہوئی بھی ہے۔ انوائرمنٹل بھی پرابلم ہو رہے ہیں اور لوگوں کو بیماریاں بھی ہو رہی ہیں، جیسے ٹائیفائڈ، کولرا، ڈائریا آج کل چل رہا ہے۔ اتنا زیادہ ٹیمپریچر ہونے کا، ہیٹ اسٹروک اتنا زیادہ، بچوں کو بخار ہو رہے ہیں، ڈی ہائیڈریشن اتنی زیادہ ہو رہی ہے۔ جی گرمی بہت زیادہ ہے، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف کہ یا باری تعالیٰ بارش آ جائے۔ گجرانوالہ، سیالکوٹ، گجرات میں اور وسطی پنجاب میں بھی گرمی میں کمی رہی، جبکہ جنوبی پنجاب میں درجہ حرارت پہلے جیسا ہی رہا۔ گرمی کی اس شدید لہر میں احتیاطی تدابیر اختیار کر کے ہی گرمی کی اس شدت سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ ازکا مقصود، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ اور بادل آئے، گرجے اور کہیں ہلکی پھوار بھی ہوئی، مگر سورج کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا۔ ملک بھر میں مجموعی طور پر گرمی کا راج رہا۔ اسلام آباد میں بھی درجہ حرارت 40 ڈگری سے زیادہ ہی رہنے لگا ہے۔ موسم کا احوال بتائیں گی مریم ملک۔ اپریل سے شروع ہونے والی گرمی کی لہر مئی میں بھی مسلسل قہر ہی برسا رہی ہے۔ جھلسا دینے والی چلچلاتی دھوپ، سورج تو جیسے سوا نیزے پر آ کر ٹھہرا ہو۔
इतवार की शाम बादल आए, गरजे भी मगर जमकर बरस ना सके। बाद गर्दो गुबार से अटी हवाओं और चंद उड़ती बूंदों से आगे ना बढ़ सकी। निस्बतन कम गर्मी के लिए मशहूर इस्लामाबाद में भी शहरी ठंडी हवा के झोंकों को तरस कर रह गए। ये सूरत हाल अगस्त में जाकर देखने को मिलती थी पहले, लेकिन अभी गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि आप पार्क वगैरह में भी देखें तो इंसान बैठता है तो आपको गर्मी फील होती है, वरना अदरवाइज़ पहले मौसम इतना बेहतर होता था कि इंसान पार्क में आता था और आराम सुकून से बैठता था। गर्मी तो बहुत शदीद है। आप देखा जाए तो अभी हमारा वैसे तो ये शहर नहीं है, हम डिस्ट्रिक्ट गुजरात से बिलोंग करते हैं। अभी वो कल मैंने चेक किया, उधर 45 था, इधर 44 के करीब है। ठीक है, तो गर्मी के लिहाज से यही है कि आवाम दरबदर हो रही है। इस्लामाबाद हालांकि इसमें पहाड़ी इलाका भी है, लेकिन फिर भी गर्मी बहुत शदीद है। कल गुज़िश्ता रात को बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई है, लेकिन इसके बावजूद बिल्कुल भी जो है इस्लामाबाद का मौसम ठंडा नहीं हुआ, अभी भी गर्मी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले चंद दिनों में भी मौसम की सख्ती बरकरार रहेगी। दर्जा हरारत 40 से 46 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। शहरियों के लिए मशवरा है, बिला जरूरत दिन के वक्त घरों से बाहर न निकलें। मौसमियाती तब्दीलियों ने दुनिया भर की तरह पाकिस्तान को भी मुतासिर किया है। माहिरीन कहते हैं कि बढ़ता दर्जा हरारत, गैर मुतवक्की गर्मी की शिद्दत और बारिशों में कमी इसी सबब से है। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और कश्मीर में चंद मकामात पर आंधी, गर्द आलूद हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश की तवक्को है। इस दौरान मुल्क के वस्ती और जनूबी अजला में गर्द आलूद हवाएं और झक्कड़ चलने का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किया गया ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद, नूरपुर थल 48, सिब्बी, जेहलम में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के हम शहरों के रिकॉर्ड किया गया ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत कुछ इस तरह से हैं: इस्लामाबाद 41, लाहौर 44 डिग्री सेंटीग्रेड, कराची 42, पिशावर 42, कोयटा 33, गिलगित 31, मुजफ्फराबाद 40, मरी 29, दीर 33, चित्राल 31, रावलाकोट 31, मालूम जब्बा 23, फैसलाबाद 42 डिग्री सेंटीग्रेड, मुल्तान 43, सरगोदा 45, श्रीनगर 30, जम्मू 44, लैद 14, पुलवामा 25, अनंतनाग 30, शुपियां 24 और बारामूला में 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कुछ मजीद कौमी खबरें शामिल करते चलें खबरनामे में। आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ से साबिक रुकने कौमी असम्बली तलाल चौधरी ने लंदन में मुलाकात की। इस मुलाकात में पार्टी उमूर और मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी 18 और 19 मई को अमरीका का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा अपने दौरे में 18 मई को ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक आलमी वज़ारती इजलास और 19 मई को बैन-उल-अक़वामी अमन और सलामती की बहाली पर सलामती कौंसिल में होने वाली खुली बहस में शिरकत करेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी दोनों इजलासों में पाकिस्तान के नुक्ता नज़र और पॉलिसी तरजीहात पर रोशनी डालेंगे। इस दौरे में वज़ीर ख़ारजा की अमरीकी हममंसब एंटनी ब्लिंकन के साथ भी मुलाकात होगी, जिसमें दो तरफ़ा तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब से रावलपिंडी चैम्बर के सदर नदीम रऊफ़ की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की और जेम्स एंड ज्वेलरी नुमाइश और दीगर कारोबारी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि मईशत को मुतादिद चैलेंजेस का सामना है, कारोबार के लिए साजगार माहौल मुहैया करना हुकूमत की अहम तरजीह है। उन्होंने रावलपिंडी चैम्बर के ज़रिए एहतमाम जेम्स ज्वेलरी और फैशन नुमाइश का इनेकाद को शाइन करार दिया। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर खान ने कौमी असम्बली को बताया कि गुज़श्ता हुकूमत की बद इंतज़ामी और बर वक्त LNG दरामद न करने की वजह से बिजली की लोड शेडिंग जैसे मसले का सामना है। इजलास की तफसील बता रहे हैं नमूद मुस्लिम। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कौमी असम्बली को बताया कि माजी की हुकूमत की जानिब से बर वक्त LNG की खरीदारी न होने के बायस महंगे फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा की जा रही है। 21,500 मेगावाट बिजली की पैदावार है, अपने वसाइल में रहकर बिला तखसीस बिजली फराहम कर रहे हैं। गर्दिशी कर्जा है जो मुस्लिम लीग नून 1060 अरब पर छोड़कर गई थी और अजाब इमरानी 2460 अरब पर छोड़कर गए हैं। दोगुना से भी ज्यादा हुआ है गर्दिशी कर्जा, जिसकी वजह से इस वक्त वजारत तवानाई पर वसाइल का एक बहुत बड़ा तनाव भी है और मुश्किल भी है, लेकिन हम उसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि काबीना ने एक बंद लिफाफे की मंजूरी दी, जिसके तहत 45 अरब रुपए बरतानिया से पाकिस्तान को मिला, जिसको बहरिया टाउन की सुप्रीम कोर्ट सेटलमेंट में डाल दिया गया, जिसके बदले में साबिक वज़ीर आज़म को अलकादिर यूनिवर्सिटी के लिए 50 करोड़ की डोनेशन दी गई। 45 अरब रुपया बनता है। ये स्टेट जो है हमारे कौमी खजाने में आने चाहिए थी। ये पैसा जो है ये बेसिकली
UK अथॉरिटीज़ ने डिसाइड किया कि ये स्टेट पाकिस्तानी रियासत को वापस किया जाए। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने और उनकी कैबिनेट ने डिसाइड किया कि ये पैसा जो है बैरिया टाउन की जो लाइबिलिटीज़ हैं सुप्रीम कोर्ट में उनके अगेंस्ट जो है इनको सेटल कर दिया जाए। और बग़ैर एजेंडे के कोई समरी मूव नहीं हुई, कोई नोट जो है इस सिलसिले में काबीना के सामने नहीं रखा गया कि ये पैसा क्यों कहाँ पे जा रहा है। गौस बख्श महर, अब्दुल कादिर मंदोखेल, मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली, महरीन रजाक भुट्टो, उसामा कादरी, सैयद महमूद शाह और दूसरे अरकान ने लोड शेडिंग पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हुकूमत इसके खात्मे के लिए तरजीही बुनियादों पर काम करे। डिप्टी स्पीकर जाहिद अकरम दुरानी ने कहा कि कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के नाम का फैसला 1-2 रोज में हो जाएगा। वक्फा सवालात में वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि माजी की हुकूमत ने MTI और PMC समेत दूसरे कवानीन को ऐवान में बुलडोज करके मंजूर करवाया था। इन तमाम कानून साजी पर नजरसानी की जाएगी। पार्लिमानी अमूर के वजीर मुर्तजा जावेद अब्बासी ने कहा कि ML1 लिंक की बरास्ता तुरखम से मजार शरीफ तक रेलवे लिंक की मनसूबाबंदी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि तोरखम तक ट्रैक मौजूद है, जबकि तोरखम से मजार शरीफ तक 22 जुलाई से काम शुरू होगा, जिससे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान रेलवे के जरिए मुंसलिक हो जाएंगे। कौमी असम्बली का इजलास कल शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। नमूद मुस्लिम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने TCP को मौखर अदायगियों पर 2 लाख मेट्रिक टन यूरिया की दरामद की इजाजत दे दी है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में मुल्क में यूरिया खाद के ज़खायर की सूरत हाल में बेहतरी और आइंदा माली साल मिलातातुल किसानों को खाद की फराहमी के लिए समरी का जायजा लिया गया। ECC ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी भी दी। इस्लामाबाद में इंसाफ की फराहमी के अमल में टेक्नोलॉजी के किरदार के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि सिविल अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक 1 साल में मुकदमात मुकम्मल हो जाएं तो मुल्क में इनकलाब आ जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जमानत और हुक्म इम्तना को मुकदमे का अंजाम समझ लिया जाता है, जो गलत रविश है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इंसाफ की फराहमी में असल मसला ताखीर है। मौजूदा हालात में इंसाफ की फराहमी के अमल को टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बगैर मौसर नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने कहा कि आला अदलिया में ऑटोमेशन निज़ाम को जदीद टेक्नोलॉजी से बदलना होगा और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ही अहम मुकदमात फौरी तौर पर समाअत के लिए मुकर्रर करने का तरीकाकार अपनाना होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बिंदयाल ने कहा है कि आर्टिकल 63A की तशरीह अहम मामला है। 63A किसी सियासी जमात को नहीं बल्कि सियासी और जमहूरी निज़ाम को बचाता है। सदारती रेफरेंस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 63A सियासी जमात के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है। रुकन असम्बली को 4 मौक़े पर पार्टी पॉलिसी का पाबंद बनाया गया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई रुकन असम्बली के आखिरी 6 माह में इनहराफ करता है तो ऐसी सूरत में डीसीट होना कोई सजा न हुई। चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन सियासी जमात को मुस्तहकम और जमहूरियत को फ़रोग़ देता है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल और मुस्लिम लीग नून के वकील मखदूम अली खान को जल्द दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए कहा कि अदालत कल रेफरेंस की समाअत मुकम्मल करना चाहती है। पंजाब असम्बली की तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान के खिलाफ दायर रेफरेंस की समाअत इलेक्शन कमीशन में हुई। मुनहरिफ अरकान के वकला ने एतराज़ करते हुए कहा कि इस केस में जवाब की आड़ में मजीद रिकॉर्ड जमा कराया गया। वकला ने दलाइल में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अरकान पंजाब असम्बली को पार्लिमानी पार्टी की जानिब से कोई हिदायत नहीं दी गई और इसका रेफरेंस में भी कहीं जिक्र नहीं। शो कॉज नोटिस जारी होने का भी कोई रिकॉर्ड नहीं। तहरीक इंसाफ ने रिकॉर्ड में जालसाजी की है। केस की समाअत कल फिर होगी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी इस्लामाबाद में मुत्तहिदा अरब अमारात के सफारत खाने गए और साबिक सदर शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। सदर मुमलिकत ने UAE के सफ़ीर हम्माद उबैद इब्राहिम सालिम मज़ाबी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मरहूम शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान पाकिस्तान के सच्चे और मुखलिस दोस्त थे। उनकी वफात पर दोनों ममालिक के लिए बड़ा नुकसान है। शाही खानदान और UAE के अवाम के दुख में शरीक हैं। सदर मुमलिकत ने शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान की पाकिस्तान के लिए खिदमात को सराहते हुए दोनों ममालिक की दोस्ती को मजीद मुस्तहकम करने के आज़म का इआदा किया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अबूज़ैबी में शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान की वफात पर मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत और आवाम से ताज़ियत की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ने शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के 2 तरफ़ा ताल्लुकात के लिए खिदमात को ख़िराज अक़ीदत पेश किया। मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत रहनुमाओं, तंजीमों और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने शुपैया में भारतीय फौजियों की फायरिंग से शहीद होने वाले शहरी को खिराज अक़ीदत पेश किया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक फौजियों ने गुज़िश्ता रोज़ जिला शुपैया में बेगुनाह नौजवान दुकानदार शुएब गनाई को शहीद कर दिया।
जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी, पीपल्स लीग, मुस्लिम लीग समेत दीगर तंजीमों और हुर्रियत रहनुमाओं ने श्रीनगर से अपने बयानात में कहा कि भारत बेगुनाह नौजवानों को कत्ल करके कश्मीरियों की सियासी उमंगों को दबाने में कामयाब नहीं होगा। उन्होंने आलमी बरादरी से अपील की कि वो मकबूजा इलाके में कश्मीरियों की मुसलसल नस्लकुशी का नोटिस ले। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने पुलिस के इस दावे को मुस्तरद किया कि नौजवान शुएब गुनाई फायरिंग के तबादले में शहीद हुआ है, वो भारतीय फौजियों की बराह रास्त फायरिंग का निशाना बने। बार ने बहिमाना कत्ल की आजादाना तहकीकात का मुतालबा किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने पूंछ में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में दफा 370 की मनसूखी के बाद से कोई तब्दीली नहीं आई। इस्लामी ताउन तंजीम ने गैर कानूनी कब्जे के शिकार मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से आबादियाती तनासुब तब्दील करने के लिए नई हल्काबंदियों पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। OIC के ट्वीट में कहा गया है कि भारतीय इक़दाम कश्मीरी अवाम के हुकूक की खिलाफ वर्जी है। मकबूजा वादी में नई हल्काबंदियाँ अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल, जिनेवा कन्वेंशन और आलमी कवानीन की बराह रास्त खिलाफ वर्जी है। इस्लामी ताउन तंजीम कश्मीरियों से उनका हक़ खुद इरादियत की उसूली मौक़िफ़ के हवाले से इज़हार यकजहती करती है। आलमी बरादरी खुसूसन अक़वाम मुत्तहिदा मकबूजा कश्मीर में हल्का बंदियों के हवाले से सूरत हाल का फौरी तौर पर नोटिस ले। भारत में बीजेपी के बाद शिद्दत पसंद हिंदू तंजीम बजरंग दल भी तखरीबी कार्रवाइयों के लिए अपने कारकुनों को इस्तेमाल करना चाहती है। रियासत कर्नाटक में इंतहा पसंद हिंदू जमात ने अपने कारकुनों को असलहे के इस्तेमाल की बाकायदा तरबियत देना शुरू कर दी है। भारतीय ज़राए अबलाग के मुताबिक जिला कोडागो में बजरंग दल ने एक तरबियती कैंप लगाया है, जहां इंतहा पसंदों में असलहा भी तकसीम किया गया है। इस तरबियती कैंप का इनेकाद एक तालीमी इदारे में किया गया। समाजी कारकुनों ने इस इक़दाम पर बजरंग दल के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। मुशीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान कमर जमान कायरा से पीपल्स पार्टी आज़ाद जम्मू कश्मीर के पार्लिमानी वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामाली, भारतीय रियासती दहशतगर्दी और आज़ाद जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मुशीर उमूर कश्मीर ने कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर की आबादी का तनासब तब्दील करने की मज़मूम कोशिश कर रहा है, जिसमें वो कभी कामयाब नहीं होगा। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत आज़ाद कश्मीर की तामीर और तरक्की और अवाम के मसाइल हल करने के लिए हर मुमकिन ताउन करेगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की 4 रेफरेंसेस में बरियत के खिलाफ अपीलों पर नैब ने दलाइल के लिए एक बार फिर मोहलत मांग ली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतई बिनुल्लाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस अतई बिनुल्लाह ने नैब प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया, क्या आप इन अपीलों की पैरवी में दिलचस्पी नहीं रखते? क्या आपने अदालत का फैसला पढ़ा है? अगर वो पढ़ते तो शायद इल्तवा की अपीलें ही ना दायर करते। उन्होंने कहा कि आखिरी मौका दिया जा रहा है, वरना ये तसव्वुर किया जाएगा कि आप अपीलें चलाने में संजीदा नहीं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने जेलों में कैदियों की फलाह बहबूद के लिए जामे रोड मैप तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत जेल इस्लाहात के जायजा लेने के लिए इजलास हुआ। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि जेल के अस्पतालों में ज़रूरी मशीनरी फौरी तौर पर मुहैया की जाए। उन्होंने कहा कि जेल के अंदर एम्बुलेंस मौजूद होनी चाहिए ताकि ज़रूरत के वक्त मरीजों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया जा सके। कोट रकबत जेल में मुलाकातियों की सहूलत के लिए गेट से जेल तक शटल सर्विस भी मुहैया करने की हिदायत की। शशपर ग्लेशियर से मुतासरा अफराद की बहाली का काम तेजी से जारी है। तफसील जानते हैं इकराम नजमी से। इस्लामाबाद मुतासरीन के लिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया और सिविल सोसाइटी के जितने भी इदारे हैं और NGOs हैं, इनकी तरफ से मुसलसल इमदाद का सिलसिला यहाँ पे जारी है। इमदाद इनको पहुँचाया जा रहा है। इसके अलावा मुतासरीन के जो नुमाइंदे हैं यहाँ पे जो मुतासरीन हैं, हम उनसे बात करते हैं कि अब तक जो हुकूमत और दीगर इदारों की तरफ से जो इनके लिए इमदाद यहाँ पे पहुँचाई गई है वो उससे कितना मुतमईन है। इंतज़ामिया इस वक्त बहुत अलर्ट और कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ये हमारे सुनने वाला अवाम भी हमारे लिए कोशिश करेंगे। हम बुरी तरीके से मुतासिर हुए हैं। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें कोई परमानेंट सेटलमेंट का बंदोबस्त करे। लोकल इंतजामिया हमारे साथ इसी तरह ताउन जारी रखेगी और ये हमारा जब तक हम मुकम्मल तौर पे 10-2 से नहीं निकलते। पाकिस्तान टेलीविज़न से बात करते हुए हसनाबाद कैंप में मौजूद मुतासरीन का कहना था कि हुकूमत और इंतज़ामिया की जानिब से जो इक़दाम उठाए गए हैं वो उनसे मुतमईन है। अलबत्ता उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि मुस्तकिल रिहाइश के लिए, मुस्तकिल आबादकारी के लिए उनको किसी ऐसे मुकाम पे, ऐसे महफूज मुकाम पे मुंतकिल किया जाए जहाँ पे वो ज़िंदगी सुकून के साथ गुजार सके।
6 माह से ज्यादा अरसे तक बंद रहने वाली शाहराह कागान बाबू सर टॉप को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। मुल्क के मारूफ सियाती मकाम कागान नारान से बाबू सर टॉप के रास्ते गिलगित बल्तिस्तान जाने वाली शाहराह गुज़िश्ता साल अक्टूबर में बर्फबारी की वजह से बंद हो गई थी। बाबू सर टॉप और मुल्हिका इलाकों में मौसम सरमा में शदीद बर्फबारी से इन खूबसूरत इलाकों में ज़मीनी राब्ता कट जाता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने इस साल तकरीबन 1 माह कबल ही भारी मशीनों के जरिए तवील कोशिशों के बाद शाहराह से ग्लेशियर्स को साफ करके सयाहों और मुसाफिर गाड़ियों के लिए आमदरफ्त बहाल कर दी। बाबू सर टॉप खुलने से गिलगित बल्तिस्तान जाने वाली गाड़ियों को 4 से 5 घंटे तक मुसाफिर कम होने के साथ साथ सयाह और मुसाफिर बर्फपोश पहाड़ों और दिलफरेब नज़ारों से भी लुत्फ अंदोज हो सकेंगे। शाहराह की बहाली से इलाके में सियाहत को फ़रोग और लोगों को रोजगार मिलेगा। ये जो रास्ता 6 महीनों से बंद होता था, इस मासेरा नादार चिलास, ये इसकी हिस्ट्री में पहले बार हमने 1 महीने पहले खोल दिया। तमाम नादरन एरिया वो सटाप के की तरफ से छोटी बड़ी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल के डॉक्टर्स ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। डॉक्टर्स ने कामयाब ऑपरेशन के बाद ओखाड़ा के रिहायशी 5 साला नन्हे बच्चे के दोनों बाजुओं को जोड़ दिया। रिपोर्ट करेंगी वर्दा सलीम। ओखाड़ा का रहायशी 5 साला काशिफ थ्रेशर के ब्लेड में आने से अपने दोनों बाजुओं से महरूम हो गया। बच्चे के वालिदैन ने फौरन रेस्क्यू 1122 की खिदमात ली और बच्चे को लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में मुंतकिल किया, जहां डॉक्टर असलम राव, डॉक्टर वसीम हमायूं और उनकी टीम ने 10 घंटे तवील ऑपरेशन के बाद नन्हे फरिश्ते के दोनों बाजू जोड़ दिए। कि खुदा न खास्ता अगर कोई सानिया ऐसा पेश आता है तो फौरी तौर पे उस कटे हुए हिस्से को अच्छी तरह से धो के, सादा पानी से धो के और किसी साफ़ कपड़े में लपेट लें और किसी जार में रख कर उसको सील कर लें और उसके गिर्द बर्फ़ भर दें। और जो हाथ कट चुका है उसको किसी ड्रेसिंग से या साफ़ कपड़े से उसको अच्छी तरह टाइट सी, हल्की सी टाइट पट्टी करके और उसको ऊंचा कर लें ताकि उसकी ब्लीडिंग ना हो, और फिर फौरी तौर पे किसी भी सेंटर से रुजू करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम 4 लोगों ने मिल के ये डिसाइड किया कि हम 2 टीमें बना के एक हाथ पे एक टीम और एक हाथ पे दूसरी टीम शुरू करके और हम इसको कोशिश करते हैं। वालिदैन खुश हैं कि उनका बच्चा भी दीगर बच्चों की तरह जिंदगी गुजार सकेगा। डॉक्टरों की मेहरबानी है कि मेरे बच्चे के हाथ ठीक कर देते हैं। मेडिकल के शोबे में ये ऑपरेशन किसी मुआवजे से कम नहीं, जो हमारे डॉक्टर्स की सलाहियत का सबूत है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। डेरा बुगटी के इलाके पीर कोह में बुनियादी सेहत मरकज को 40 बिस्तरों के अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है। 56 बाउजर्स के जरिए पीने का साफ पानी फ्राहम किया जा रहा है। पीर कोह के लिए मौजूद ट्यूबवेल को दोबारा बहाल कर दिया है। सूबाई सेक्रेटरी सेहत साले नासिर ने कमिश्नर सिबी और डीसी डेरा बुगटी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हैजे के साथ मलेरिया और गैस्ट्रो का मसला भी दरपेश है। एफसी बलोचिस्तान के डेरा बुगटी के इलाके पीर कोह में रिलीफ ऑपरेशन जारी है। मुतासरा मरीजों के लिए मेडिकल कैंप का क़याम अमल में लाया गया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने कहा कि साबिक दौर में मुल्क की दौलत को बेदर्दी से लूटा गया। सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल करके एहसन जमील गुज्जर, फराह गोगी और उस्मान बुजार ने ज़ाती असासों में अरबों रुपए का इजाफा किया। तफसील जानते हैं शाहरुख शफी से। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने कहा कि उस्मान बुजदार खानदान के 10 अरब मालियत के गैर कानूनी असासे पकड़े गए हैं। टैक्स एमनेस्टी के जरिए काले धन को सफेद किया गया। पोस्टिंग ट्रांसफर्स में, ठेकों में कट लिया गया। सारे ताने बाने इसके बनी गाला से मिलते हैं। हमने ये फैसला किया है कि उस्मान खान बुजदार और उनके साथ जितने लोग करप्शन में मुलव्विस थे, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल करते हुए कौम का अरबों रुपया लूटने में मुलव्विस थे, पंजाब एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में उनके खिलाफ दरखास्त आज दायर करने जा रहे हैं। उस्मान बुजदार के दौर में तौसा में करोड़ों रुपए के असासे बनाए गए। दोस्त मोहम्मद बुजदार ने भी तौसा में करोड़ों रुपए की जमीन हासिल की। क्या इमरान खान इन तमाम गैर कानूनी असासों से बेखबर थे कि एक शख्स जिसके घर में बिजली नहीं थी, जिसके असासे चंद करोड़ के थे, वो आज 10 अरब का मालिक बना बैठा है। उसने खुद भी माल कमाया, काला धन कमाया और खान साहब को भी कमा के दिया। आज तक इमरान खान का जरिया आमदन मुझे नहीं पता। आप 400 कनाल के महल में रहते हैं, आप कैसे मेंटेन करते हैं? आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? उन्होंने कहा, अब हमें समझ आया कि इमरान खान उस्मान बुजदार को क्यों वसीम अकरम प्लस कहते थे, क्योंकि वो इनके कमाऊ पूत थे। शाहरुख शफी, पीटीवी न्यूज, इस्लामाबाद।
वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने मुतल्लिका इदारों को अवामी फलाही मनसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की है। वफाकी वज़ीर को डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी की जानिब से नारोवाल में जारी तरक्याती स्कीमों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वज़ीर ने कहा कि फलाही मनसूबों के जल्द मुकम्मल होने से अवाम को सहूलियात मुयस्सर आएंगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस पुजिंचो ने इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर मौलाना अब्दुल वासित से मुलाकात की। चेयरमैन सेनेट मोहम्मद साजिद सिंजानी ने भी मुलाकात की। इस मौके पर बलूचिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल, अमन व अमान, तरक्की और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह और वफाकी वज़ीर इंसदाद मुनशियात शाह ज़ैन बिगटी की सदारत में इजलास हुआ, जिसमें फैसला किया गया कि नारकोटिक्स के लिए स्पेशल प्रोसिक्यूटर रखा जाएगा, जबकि मुनशियात के मुकदमात को अलग अदालत में चलाने पर भी गौर किया गया। इजलास में मुनशियात कंट्रोल फोर्स के क़याम का भी फैसला किया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि तालीमी इदारों में मुनशियात के इस्तेमाल के खिलाफ आगाही मुहिम शुरू की जाएगी। मुतल्लिका इदारे ड्रग माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन करेंगे। कुछ दीगर अहम खबरें शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। अवाम सब जानते हैं, अपने मुजरिम पहचानते हैं, जिसने अपने 4 सालों में 20 किलो आटा 700 से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिया। 151 में मिलने वाला घी 470 रुपए किलो किया। खाद की बोरी 1380 से 1918 तक पहुंचाई। बिजली का यूनिट 11 रुपए से बढ़ाकर 25 रुपए कर दिया। गैस का जो बिल 600 रुपए आता था 1400 रुपए पे पहुंचाया। महंगाई के इस 4 साला तूफान की वजह से मजीद 2 करोड़ अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। लेकिन अब जुल्म का दौर खत्म हो चुका। बदहाली को खुशहाली में पहले भी बदला था, फिर बदलेंगे इंशाअल्लाह। हुकूमत पाकिस्तान। सेनेट की कायमा कमेटी तवानाई का इजलास सेनेटर सैफुल अबड़ो की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ। कमेटी को असिस्टेंट इंजीनियर्स की तरक्कियों, नैपरा टैरिफ पर नजरसानी और कैपको कॉन्ट्रैक्ट में अक्टूबर 2022 तक तौसीह से मुतालिक उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। नाज़रीन, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में स्किल्स लैब का इफ्तिताह कर दिया है। 37 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल होने वाली स्टेट ऑफ द आर्ट लैब में डॉक्टर्स की जदीद तरबियत की जाएगी। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि बुनियादी और देही मराकज़ सेहत को 24 घंटे फाल रखने के लिए इस्लाहात की जा रही हैं। चेयरमैन नायब रिटायर्ड जस्टिस जावेद इकबाल की सदारत में इस्लामाबाद में इजलास हुआ, जिसमें इदारे की मजमूई कारकर्दगी का जायजा लिया गया। खिताब करते हुए चेयरमैन नायब ने कहा कि इस्लाहात के जरिए इस्लाहात को फाल इदारा बनाया जा सकता है और बदउनवानी के खात्मे के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं।